लास्टली जाते जाते कुछ एनडीए एस्पिरेंट्स जो जिनका भी एग्जाम है, अभी 1 महीने में एग्जाम है, या जिनके अभी एसएसबीज हैं, उनके लिए कुछ गोल्डन वर्ड्स व्हाट यू फील कि यू हैव लर्न फ्रॉम ऑल योर एक्सपीरियंसेस, और इनको एटलीस्ट पता होना चाहिए वहां जाने से पहले। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रियांशु तोमर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जीरो आर क्लासेस पर। सो गाइज, आज हमारे साथ एक बहुत खास इंसान जुड़े हैं, आयुष। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you yeah, for inviting. आयुष भाई, पहले तो आई जस्ट गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट यू टू द पीपल। आयुष is recommended for NDA and he is a alumni of a सैनिक स्कूल। बाकी आयुष खुद ही आपके अपने बारे में आपको बताएंगे। आयुष, just give a brief introduction about yourself please. Well, friends, as you already know, my name is Ayush God, and I'm a resident of Dehradun in Premnagar. And I have completed my intermediate from Sainik School Ghodakal, which I consider a great achievement for me. And recently, I'm currently pursuing BSc Honors Mathematics from Uttaranchal University, near my home only. And just now I have cracked my NDA. It's my third attempt. Before it, I have given 2 more SSBs. In both, I got conference out. So it has been a long wait for me. Well, Ayush, it was indeed a long wait because दो कॉन्फ्रेंस आउट के बाद आप अभी रिकमेंड हुए और अकेडमी होपफुली यू विल बी इन दोज लिस्ट एंड आई विश यू लक फॉर दैट. सो एवरीवन, like it's like NDA is a dream. It was a dream for me and it is still a dream for many other defense aspirants. So we want to know, every one of us wants to know about your preparation. How did you prepare for your written exam? What was your strategy? What were your sources for your written exam? भैया सबसे पहले तो मेरे को जो फील होता है कि रिटन एग्ज़ाम के लिए सबसे मेन चीज़ थी मैथ्स पे पकड़ बनानी. एंड आई बिलीव डैट उसके लिए सबसे पहले आपको फोकस करना होगा अपने बेसिक्स से. 11th और 12th की मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए. तो आई स्टडीड गुड इन 11th एंड माई 11th मैथ्स वॉज क्वाइट स्ट्रॉन्ग. माई 12th वॉज नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग बट स्टिल आई कोप्ड अप. So I believe that it helped me quite much. And apart from it, in our school also there is general focus towards it. So everyone studies for it, so you get a motivation and passion from seeing your course mates and batchmates studying. And apart from it, for the general science, I studied from various sources from YouTube. And also there is a book called Pathfinder. It is a general book that is 1.5-2 किलो की बुक है. yeah. You can use it for exercise also. So it was great help for me. Apart from it, I've been in my school quiz team also. Okay. So my general science was good, and current affairs are definitely a must. If you want to crack the general science, it definitely gives you a great edge in scoring much marks, as there are 12 to 13 current affairs. So if you score 12, if you get 12 to 13 current affairs, then it is into 4, so you will get nearly 48 marks from that only. Mhm. And apart from it, English is also a major scoring subject. So yeah. This was it. Yeah. Okay, but see, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक्स, मतलब मैथ्स के लिए 11th and 12th के एनसीईआरटी बुक आर दो सफिशिएंट? People go on to buying R.D. Sharma, R.S. Agarwal and a lot of books preparing all those things. So what do you think? I think that the NCERT books are best thing to establish a base. In mathematics, at least I can say. In physics and all, yeah, it is saying it. They generally say that don't study from them. Yeah. So, but for maths, I believe that it is a good thing to establish a base. And if you establish a good base, then I think you can easily crack the competitive exams. If you see in NDA, there are many questions that come from trigonometry, and trigonometry is the base of mathematics for 11th and 12th at least. Yes. So you can say that you have a good base, then you can easily solve the problems. After that, you need to mug up the formulas and all. Okay. So this was a simple and quite efficient strategy for your NDA exam. Okay, तो ठीक है, रिटर्न तो हो गया. फिर उसके बाद एसएसबी के लिए एसएसबी कैसे प्रिपेयर किया? बिकॉज अब पहले तो रिटर्न एग्जाम क्लियर करना ही मुश्किल है, फिर उसके बाद रिटर्न भी क्लियर हो जाता है, लेकिन क्या है कि फिर उसके बाद एसएसबी के लिए भी यू आर सपोज टू प्रिपेयर. लेकिन ये बोलते हैं ना, एसएसबी के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं होती. इट इज जस्ट योर पर्सनैलिटी, व्हाट यू शो टू द असेसर्स, बट उसके लिए एक रास्ता जरूरी है. तो what was your way? How did you get through it? Definitely, they say that preparation की तो ज़रूरत है. But also I personally believe that personality is one of the major factor also. Some people may be good in academics,
but they generally like don't take participation in sports and extracurricular activity much. So like it makes it have impact on the personality too. So what I believe is that the general things, the day-to-day things that we take, the initiatives we take in our life are a major factor. Some take some time, so and some get recommended in the first time. That is the difference I feel, and definitely preparation is must as you are going for some exam where for appearing for a like NDA, which everyone is dreaming for, and there are less seats. So definitely you need to prepare. So yeah, preparation is must as it is the first time everyone is seeing that 5-day course, and it is quite bizarre also. Ki, every time if a fresher person is standing there who haven't heard about SSB, he'll think what is going on here. Exactly. So definitely. So the very first time I prepared for my SSB was it was with the Rudra sir in Masi Almoda. I like I would like to thank him. Like he was the one who helped me improve my like general observation skills, and apart from it, he was the one who made me realize that you need to inculcate things in your general day-to-day life to improve your personality. So this was a great help for me. Apart from it, I have been to SSB OGC this time, and it was definitely a great help. As for the repeater, I was repeater 2 times. So as for a repeater, it is a thing that you need to find out the problem where you are lacking. And for me, like to find it, it took quite while, and SSB OGC definitely helped me. That Puneet Sharma sir had told me a few of my flaws that I need to improve on them. I improved on them, and I saw the results in the SSB this time. Okay, great. So this was quite good achievement for you, and you have. I'm sure you might have learned a lot of things from your previous attempts also. तो ऐसी क्या चीजें थी जो आपको लगा कि आपके जो लास्ट के 2 अटेम्प्ट्स थे उसमें से जो आपने सीखी, और इस वाला जो अटेम्प्ट था आपका, आपने उसमें उसको इनकलकेट किया और अच्छे रिजल्ट्स मिले आपको? देखो मतलब जो मेरा पहला अटेम्प्ट था वो था 22 SSB भोपाल ऑन 29th of September 2021. So उस टाइम मैं फ्रेशर था. Like I like had a confidence in my like group discussions and all. So I felt that I'll easily make it through. But at that time, I felt that I was a bit lacking in my interview. I didn't prepare like much. I've heard that go journal. But in my first interview, like I was not knowing about the fact that जो इंटरव्यू होता है वो आपको कंफर्ट जोन में डालेगा और फिर बहुत चीज़ें उगलवाएगा आपके मुंह से. सो आई लाइक ही गॉट मी इनटू दैट कंफर्ट जोन, एंड आई वाज लाइक I told him, yeah. He asked me school में juniors को punishment दी है. I told him yes. Bunk मारा. I told him yes, and everything. He was also saying yeah हम भी मारते थे bunk वगैरह, and I was like going with the flow. So at that time I felt that after that कि ये नहीं बोलना चाहिए था. I need to give him such truth, but in like in a manner in which he is also like, and it will also not go against me. So I felt that I need to improve on that, and definitely psych is also a major part. I didn't prepare much for the psych, so speed and all was also a major factor. My GTO first time was very good. Okay. It was the best I had. I enjoyed it a lot, but that was it. In the second attempt, actually, it was in 24 SSB Bangalore. At that time, I was again confident. This time I had prepared well and all. This time my interview went extremely well. My GTO was also fine, but I felt that there was something that was like holding me back, and I realized after that coming from the SSB was that the thing that was holding me back at that time was the like desperation of a repeater. Like when you are a repeater, like you become desperate, and apart from it, I was only repeater screened in, and everyone was like we were 29 cadets, candidates who got screened in, and I was only one repeater there. So I felt that I need to do well, perform well, better than them, then only they'll take me. So at that time I had a desperation for recommendation, and like I felt that it held me back. If like my sight like didn't went well at that time, I perceived some pictures wrong. I practiced too much that after seeing the picture I was getting the idea, but the picture was slightly different from the picture I've seen. So story that must have been made, but totally different from the story that I made. Okay, it was a preconceived idea. Yeah, like preconceived idea. Okay, great. So I felt that it was the reason. My interview went extremely well at that time. I was happy for my interview, and my GTO was again fine. I felt that I lacked majorly in the psych only. Okay. So that was the thing. But after coming back, I realized that this desperation is holding me back, and I felt that I'll go with free mind.
like I'll go and definitely work with 100% on the task that I'm currently doing. Like last time, like if my psych didn't went well, it was the very first task of the day, my of the second day, and it didn't went well. So I was like bit down. So I was not able to focus properly. I was thought that now recommendation is more harder, and that was the thing that was holding back. So this time, like I went to SSB OGC. My younger brother is also in NDA. He got recommended in 149, in which I got contest out. So at that time, I felt bad for me. I felt happy for my brother. But he was the one who told me, यार भैया psych की preparation ज़्यादा नहीं करनी थी. He also went to SSB OGC. He's your younger brother, right? Yeah, he's my younger brother. He's gonna be my senior in the academy. You are going to have fun. Yeah, definitely. So that time he told me, go to SSB OGC one time. Sir gives a great guidance. Okay. And I went there. Sir personally gave me great guidance. I told him, sir, this was the problem I faced. In the command task, he asked me this and all. Sir have been a ex-GTO at 1FSB and he gave me a great guidance. उन्होंने मेरे को बताया कि तेरे GTO में कुछ तेरे जब तू GD करता है तो थोड़ा लगता है एग्रेसिव है, और बाकी मतलब तू पॉइंट्स तो अच्छे दे रहा है, लेकिन उस एग्रेशन को कंट्रोल कर. द मैनर यू स्पीक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अपार्ट फ्रॉम इट सर ने मेरे को भी एक और चीज़ बताई कि साइक की प्रैक्टिस ज़्यादा मत करो. इट वॉज मुखर्जी सर हु हैव बीन देयर. ही वॉज ऑल्सो एक्स साइकोलॉजिस्ट एंड उन्होंने भी बताया कि साइक की प्रैक्टिस ज़्यादा मत करो. लाइक आई गेव माई साइक डोज विदाउट प्रैक्टिसिंग एंड सर ने अच्छा रेट किया था. सर ने बोला था अच्छा है. तो आई फेल्ट कि हाँ नहीं करनी चाहिए ज़्यादा, बस राइटिंग स्पीड की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए थोड़ी, और यही था. सो आयुष, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम बिल्कुल आपकी पूरी 5 दिन की जर्नी जानना चाहेंगे आपके जलंधर में 31 SSB जलंधर की. मतलब आपका स्क्रीनिंग टेस्ट कैसा हुआ, आपका साइट टेस्ट कैसा हुआ, GT टास्क, इंटरव्यू एंड योर कॉन्फ्रेंस, और फिर उसके बाद रिकमेंडेशन. कितने लोग आए, कितने लोगों ने रिपोर्ट किया, कितने लोग स्क्रीनिंग हुए, कितने लोग रिकमेंड हुए, एवरीथिंग, बट इन अ like day-to-day manner. So how was your first day at 31 SSB Jalandhar? 31 SSB Jalandhar as मतलब सभी कहते हैं कि मतलब रिपीटर्स का बोर्ड है, तो आई वॉज लाइक बिट एक्साइटेड कि रिपीटर्स आने वाले मेरी तरह, तो कुछ अलग से ट्रीट नहीं करेंगे. मेरे को फील हुआ था कि रिपीटर्स को शायद कुछ अलग ट्रीट करते हो, तो लाइक आई फेल्ट कि अलग से ट्रीट नहीं करेंगे, तो थोड़ा खुशी हुई थी. एंड टोटल रिपोर्टिंग थी हमारी 80 करीब, एंड द फर्स्ट डे दैट दे स्क्रीन वॉज 40. जो हमारा स्टार्टिंग में स्क्रीनिंग ग्रुप बना था वो मतलब था 11 बंदों का. तो जो मैं जिस ग्रुप में था तो उसमें काफ़ी सारे रिपीटर्स थे, और उसमें जो सीन था कि हमारा डिस्कशन जैसे हम 10 बंदों में था, तो उसमें स्टार्टिंग में जैसे डिस्कशन शुरू हुआ था तो बहुत ही ज़्यादा हाइप हो गई थी कि सबके सब बोलने लग गए. तो उसमें भी सर को डिवाइड करना पड़ गया था, 5 इधर बोलो 5 इधर बोलो. तो उसमें जो हमारा 5 बंदों का ग्रुप था, पहला मैं फर्स्ट बंदा था, तो जैसे 5 बंदों का ग्रुप था उसमें भी हम बोले जा रहे कुछ हो ही नहीं रहा, किसी का कुछ कंक्लूजन आ नहीं रहा अच्छा खासा. फिर जैसे जैसे करके 1-2 पॉइंट निकाले मैंने, और मतलब ग्रुप आया एक तरफ. फिर उसके बाद दूसरे साइड एकदम बहुत ही सभ्य डिस्कशन चला था, और मेरे को लगा कि ज़्यादा ही मतलब सभ्य चल रहा है तो उनकी साइड से होने वाला है स्क्रीनिंग काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उनकी स्टोरी थोड़ी अलग ही चली गई थी पिक्चर से. तो फिर सर ने बोला ठीक है अब कॉमन डिसाइड करो. तो यहाँ हम 5 लोगों ने एकदम बोला, सबने एक साथ ही बोल दिया कि चलो ठीक है हम इसी पॉइंट पे आएंगे, हम इसी पिक्चर पे आएंगे जो हमने डिसाइड किया था फूड फेस्ट. तो फूड फेस्ट पे आए जैसे ही तो उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने भी ठीक है बोल दिया. तो GTO सर ने नॉमिनेट करने को नहीं बोला, तो वहाँ पे जो सर थे उन्होंने बोला ठीक है, इट वॉज गुड डिस्कशन एंड ऑल, भेज दिया. फिर हमें लगा कि यार क्या वॉश आउट तो नहीं जाएंगे, तो ऐसे ही सोचा. अब जैसे ही सब बंदों का हो गया स्क्रीनिंग का, उसके बाद हमें करीब 4:30 बजे तक वेट कराया. हम सोच रहे थे क्या हो गया, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है. सो रिजल्ट फिर 4:30 बजे जब आया तो उसमें हमारे ग्रुप से जो हम 5 बंदे थे जो स्टार्टिंग में एकदम सब चिल्ला के बोल रहे थे, हम 5 स्क्रीनिंग हो गए, और जो एकदम सब भी डिस्कशन कर रहे थे वो हुए नहीं. तो मेरे को समझ नहीं आया उस समय हुआ क्या, लेकिन आई फेल्ट डैट कि हाँ ठीक है हमारी स्टोरी टू द पॉइंट थी, अच्छी नरेशन होगी, तो हो गए. तो फर्स्ट डे तो टायरिंग था ही. उसके बाद उन्होंने एकदम डॉक्यूमेंटेशन पे आ गए कि ठीक है तुम्हें अब PIQ भरने हैं, तुम्हें बाकी डॉक्यूमेंट्स भरने हैं, कार्ड भरने हैं, कार्ड देते हैं. और तो डॉक्यूमेंटेशन के बाद एकदम थक चुके थे. उसके बाद उन्होंने अकोमोडेशन भेजा थोड़ा ब्रीफिंग के बाद, और अकोमोडेशन में तो अकोमोडेशन बहुत ही अच्छी थी. नया बोर्ड बना है उस हिसाब से काफ़ी सही है. जो बोर्ड है वो उससे पहले कोर हेडक्वार्टर था, तो लाइक काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ थी, गीज़र वगैरह सब अच्छे से थे, मच्छरदानी वगैरह भी लगी हुई थी. तो हमने सोचा अच्छा बोर्ड है, मतलब पहले सुना था कपूरथला बोर्ड है NCC कैंप जैसा है. तो ये था हमारा मतलब फर्स्ट डे. इसके बाद तो मतलब रात को सब ऐसे ही मिले,
तो उत्तराखंड वाले भी काफ़ी मिल गए थे और हम 3 बंदे एक रूम में थे। तो मतलब अच्छी खासी बात हो गई थी हम लोग की। जो मेरे साथ रूममेट थे सब उत्तराखंड वाले निकले, तो अच्छी खासी बात भी हो गई थी। उसके बाद थोड़ा एसडी प्रिपेयर किया हमने। एसडी प्रिपेयर करना थोड़ा ज़रूरी होता है अगले दिन के लिए। एंड उसके बाद सब मतलब उसके बाद हम सो गए। फर्स्ट डे मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा, काफ़ी ज़्यादा मजे करे। उसके बाद सेकंड डे साइड टेस्ट काफ़ी टेंस रहता है माहौल कि यार कैसे होगा अगले दिन, क्या होगा। एंड ऊपर से लाइक यू सेड कि पहले वाले साइड में यू फेल्ट कि थोड़ा अच्छा नहीं हुआ पहले वाले अटेम्प्ट्स में, तो इस वाले के लिए हाउ डिड यू प्रिपेयर? मींस रात से ही प्रिपरेशन चल रही थी क्या? हाँ मेरा रात से ही हो गई थी। मतलब जैसे सोचा सेल्फ डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर कर लेते हैं, क्योंकि आमतौर पे सबका सेल्फ डिस्क्रिप्शन का लास्ट पैराग्राफ छूट जाता है, हाँ। व्हाट यू आर द थिंग्स दैट यू नीड टू इम्प्रूव। तो आई हैव ऑलरेडी टेकन अ नोटबुक। मैं नोटबुक ले गया था, उस पर लिखी हुई थी मैंने सेल्फ डिस्क्रिप्शन। तो पॉइंट्स मैंने माइंड में रख लिए थे कि हाँ ठीक है ये पॉइंट्स रखे हैं माइंड में, अब वहाँ पे जैसे तैसे बना के लिख दूंगा। तो हाँ बना लिए थे। तो उसके अलावा मेरे पे प्रेशर तो था ही साइक का, क्योंकि लास्ट 2 बार जितना भी था कि साइक में मतलब थोड़ा अच्छा नहीं हुआ था। तो आई फेल्ट दैट इस बार भाई करना है, इस बार प्रैक्टिस भी नहीं करी, इस बार भी नहीं हुआ तो पता नहीं कौन सा टोटका लगाना पड़ेगा। तो थोड़ी हेल्प हो गई थी, लगा हाँ। तो पिक्चर्स आई थी एकदम न्यू आई थी, एकदम पुरानी प्रैक्टिस भी नहीं आई थी, न्यू पिक्चर्स आई थी। तो लगा कि हाँ ठीक है अच्छा जा रहा है। उसका मैं रिलेट कर पाया था अच्छे से लाइफ से अपनी, और एक अच्छी खासी स्टोरीज लिख पाया था। तो टैग तो हो गया था अच्छा, ब्लैंक स्टोरी वगैरह भी। इसके बाद जो उन्होंने हमें दिया था वैट, वैट थोड़े अलग से थे इस बार। मतलब पहले लास्ट 2 बार दिए थे, उस बार तो मतलब लगे थे सिंपल वर्ड्स आते हैं। इस बार भी मतलब सिंपल थे, लेकिन थोड़े मतलब इस टाइप के वर्ड्स थे जो मैंने पहली बार देख रहा था। जैसे एक अलूफ आ गया था, मेरे को मीनिंग नहीं पता था। और कुछ कुछ वर्ड्स आए थे जो बंदों को मतलब मीनिंग इतने पता नहीं थे। बाकी सही था, मतलब टैग वैट भी इतना कुछ गया नहीं। लाइक प्रिपरेशन थी अच्छे से, एसोसिएट कर लिए थे अच्छे खासे। इसका एस आर टी में तो फिर स्पीड की मैटर करता है, तुम्हें बस वो पेपर पकड़ा देते हैं और लिखना है। तो कितनी एसआरटीज करी? मैंने करी थी 52। 50 काफी अच्छी स्पीड थी। और फिर ऊपर से यू हैव टू राइट दोस क्रिस्प आंसर्स ना, मतलब बिल्कुल एकदम ऐसा लंबा लंबा आंसर भी नहीं लिखना, तो फिर हाँ वरना तो पूरा ही नहीं हो पाता वो। हाँ एस आर टी में ये दिक्कत होती है, लोग आंसर लिखने लगते हैं तो एकदम लंबे चौड़े आंसर लिख देते हैं, एक का फिर अगला छूट जाता है, इस टाइप का हो जाता है। तो हाँ शॉर्ट और क्रिस्प लिखने पड़ते हैं, और लाइक स्पीड भी मैटर करती है। एस आर टी के बाद एस डी टी में हुआ था हमारा। एस डी टी चालू हुआ था तो उसके बाद सब लिखने लग गए थे। मैं इधर उधर देखा सब लिख ही रहे हैं इधर उधर, तो सबका प्रेशर बना ही हुआ था कि हाँ भाई करना है करना है। तो फील हो रहा था प्रेशर अंदर से सब कुछ। तो मतलब उन्होंने जैसे सर ने बोला टाइम इज अप, तो सर जैसे डोजियर कलेक्ट करने लगे थे। पीछे से मैं चेस्ट नंबर 11 था, तो पीछे से कलेक्ट हो रहा था। मैंने कहा अभी भी टाइम है, तो सर मेरे को देख रहे हैं, मैं लिखे जा रहा हूँ, अभी भी लास्ट पैराग्राफ थोड़ा सा बचा है, मैं लिख रहा हूँ कि हाँ सर सर बोल रहे हैं दोबारा से। मतलब इंटेंडेड मेरी तरफ था, मेरे को पता है। सर बोल रहे थे रुक जाओ, पीछे से करेक्ट होता। मैंने कहा लिखूंगा भाई, हर तो कुछ लास्ट चांस है, छोड़ूंगा नहीं। हाँ छोड़ूंगा नहीं। फिर जैसे ही मेरा लास्ट पैराग्राफ कंप्लीट हुआ तब जाके मैंने छोड़ा। इतना कुछ हुआ नहीं। अब ये था तो सेकंड डे था। इसका इंटरव्यूज़ के लिए सर ने पहले अंदर सी एच एम सर आ गए थे हमारे। तो सी एच एम सर ने बोला कि इतने नंबर्स का इंटरव्यू हो सकता है। तो उसमें पहले 11 to 20 का भी बोल दिया कि 11 to 20 भी हो सकता है। तो हम लोग भी रेडी थे, अब पूरे दिन रेडी थे। अब उसने इंटरव्यू, उस समय भी हम बाकी को सुन रहे थे जो आ रहा था, भाई कैसा गया तेरा इंटरव्यू, क्या हुआ, क्या क्या वो बहुत पूछ रहे टेंशन थे। माहौल रहता है, हर कोई पूछता है कि भाई क्या सवाल पूछा तुझसे, क्या कैसा हो रहा है, कितने देर चल रहा है। हाँ तो इसमें एक पर्टिकुलर इंटरव्यू सर थे जो बस 15 मिनट ले रहे थे, बच्चों को भेज दे रहे थे। 15 मिनट में ही? हाँ 15 मिनट ले रहे थे, बच्चों को भेज देते। मैंने कहा भाई क्या हो रहा है तुम्हारा, सर को मजा भी आ रहा है कि तुम क्या रिप्लाई दे रहे हो। तो ऐसे ही था। तो मैंने सुना अच्छा क्या पूछ रहे हैं, जनरल इतना कुछ करंट अफेयर्स पूछ नहीं रहे हैं, ऐसे बोला उन्होंने। तो अब ऐसे ही चला, पहले दिन आया नहीं तो मतलब खुश हो गए थे। फिर टी ब्रेक हो गया, शाम को 5 बजे करीब चाय की, चाय अच्छी बनती थी। तो कपूरथला मतलब जलंधर बोर्ड की मतलब एक उनकी स्पेशल डिश है, उनकी स्पेशलिटी है डिश की, कि वो कॉर्नफ्लेक्स देते हैं। सुबह दूध में कॉर्नफ्लेक्स मिला के देते हैं, टी ब्रेक में कॉर्नफ्लेक्स के नमकीन बना के देते हैं, और शाम को कॉर्नफ्लेक्स का वो बना के देते हैं, पुडिंग बना के दे देते हैं। तो उनकी स्पेशल डिश वही है कॉर्नफ्लेक्स। तो एसी से इस बार कॉम्प्लेक्स ज्यादा हो गया शायद से वहाँ पे। हाँ शायद उनकी मतलब खासी डिश बन चुकी थी कॉर्नफ्लेक्स, हर दिन कॉर्नफ्लेक्स खाते थे हम। तो मतलब वही था कॉर्नफ्लेक्स वगैरह। तो उस समय तो मतलब स्पोर्ट्स वगैरह का कुछ आया नहीं था, तो शाम को बस एक दूसरे से इंटरेक्ट करते थे। और आजकल ये गेम फेमस हुआ है माफिया, तो हम लोग रात में वही खेलते थे। अच्छा। माफिया हमने कहा खेलेंगे भाई। और इंटरेस्टिंग था, हमने डेयर भी रखा था लास्ट में, तो इंटरेस्टिंग था। रात को तो ऐसे ही टाइम पास हुआ हमारा। इसके बाद फिर अगले दिन के लिए फिर हमें बोल दिया था सर ने कि अभी ठंड हो रही है, तो ट्रैक सूट हैं, सब लाए हैं वाइट ट्रैक सूट। तो हम लोगों ने तो बोला कि कुछ बंदे लाए नहीं थे, कि उन्होंने सोचा था ऐसे ही चल जाएगा काम। तो सर ने बोला सिविल ट्रैक सूट भी पहन सकते हो कल सुबह, बस जुकाम नहीं होना चाहिए, ताकि बाकी तुम्हारी परफॉर्मेंस पे असर ना पड़े। तो मतलब काफ़ी सही था ये। तो हमारा सेकंड डे हमारा मतलब इंटरेस्टिंग गया था काफ़ी। ओके, मजे करे मतलब पूरे।
फिर थर्ड डे पे जीटी टास्क कैसा रहा? थर्ड डे पे जीटी टास्क अच्छा, इंटरव्यू भी शायद से फिर सेकंड डे तो नहीं हो पाया, फिर नहीं, इंटरव्यू भी थर्ड थर्ड डे डे पे हुआ होगा। ठीक है ओके। तो हाँ, तो जीटी टास्क में तो लाइक मेरे को पहले ही पता चल गया था, जो डिस्कशन चल रहा था हमारा, मतलब सेकंड डे पे हम इंटरेक्शन हो रहा था, तो पहले ही पता चल जाता है जैसे 40 बंदे स्क्रीन में होते तो हमें समझ आ गया था 10-10 के ग्रुप बनने। तो मैं समझ गया था 11 से 20 मेरा ग्रुप होने वाला है। तो मैंने ग्रुप वालों को देखा अपने, तो मेरे को लगा कि सबके सब तो रिपीटर है, और मतलब स्पेशलिटी मेरे ग्रुप की ये थी, हमारे साथ 3 प्रीवियसली रिकमेंडेड स्क्रीनिंग हुए थे। अच्छा। तो मेरे ग्रुप में 3 में से 2 प्रीवियसली रिकमेंडेड स्क्रीनिंग थे, एक तो 12 नंबर था और एक 18 नंबर। तो लाइक प्रेशर और बढ़ गया कि भाई अब क्या है, मैंने कहा देखते हैं भाई ये रिकमेंडेड बंदों में भी क्या इनमें क्या है है, ऐसा? पिछली बार क्या किया था उन्होंने। तो हमने सोचा, तो मतलब थोड़ा फिर मैंने थोड़ा मतलब एक्साइटमेंट सा भी हुआ कि हाँ भाई मज़ा आने वाला है, ग्रुप अच्छा है, तो डेफिनेटली कंपटीशन काफ़ी होगा। कंपटीशन में फिर बस मतलब जब निखर के आते तो अच्छा ही आता है, फिर कि जब तुम्हारा हाईलाइट हो गया तो अच्छे ही हाईलाइट हो गए। और तो फिर यही था, तो जीडी तो हमारा अच्छा हुआ था, हर एक पॉइंट दे रहा था अच्छा खासा, कोई किसी को काट नहीं रहा था। मेरा तो शायद एक्टिव पार्टिसिपेशन था, बंदे बोले थे भाई तू ज़्यादा ही बोल रहा था। तो मेरे को लगा नहीं मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, क्योंकि लेकिन फिर मैंने सोचा था कि अगर मेरे को लगेगा कि मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो अगर सामने वाला कोई बोला तो मैं चुप हो जाऊँगा। तो इस टाइप में तो मतलब सही गया था जीडी। तो जीडी में तो एक टॉपिक था हमारा सबसे पहला, कि इंडिया डिफेंस के अलावा अपने आप को सुपर पावर कैसे दिखा सकती है, इस टाइप के टॉपिक था। तो उसमें 3 थे, कि एक था इकोनॉमिकल पावर बन सकती है इकोनॉमी के दम पे, एक था कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और एक था इंफ्रास्ट्रक्चर। सो डेफिनेटली इसमें मतलब काफ़ी लाइक इसमें तो सबने अलग अलग लीड्स ली थी। फिर जो अगला जीडी था वो काफ़ी मतलब एक साइड पे आ गई थी, कि हर बंदा एक ही पॉइंट पे आ गया, एक ही पॉइंट ले लेता हर बंदे ने। सेकंड था हमारा, जो सेकंड जीडी टॉपिक था, वुमेन्स आर एक्सेलिंग इन स्पोर्ट्स, सो व्हाट डू यू थिंक इज द मेजर रीजन। तो जो मतलब 3 लीड थी, उसमें 3 में से मेरे को 2 ही याद है, क्योंकि बंदों ने 2 ही लीड इन पे ही चला था डिस्कशन, तीसरा तो छोड़ ही दिया था। जो पहली लीड थी माइंडसेट, और दूसरी लीड थी स्पॉन्सरशिप। तो एक या दो बंदे थे जिन्होंने स्पॉन्सरशिप पे बोला, बाकी सब माइंडसेट पे बोल रहे थे। तो सब मोनोटोनस हो गया था, एकदम हारमोनियस सा माहौल, सब बोल रहे हैं, एक बोल रहा है, सब एक ही पॉइंट बोल रहे हैं, लग रहा है भाई वही पॉइंट अभी बोला था, वही पॉइंट अभी चल रहा है। तो फिर ये ऐसा निकल गया, तो फिर लगा हाँ ठीक है, ग्रुप वाले अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं, पॉइंट्स दे रहे हैं, सब अच्छे हैं। फिर इसके बाद तो जब जीपी हुई, जीपी में थोड़ा बहुत हालत ख़राब हो गई, क्योंकि जीपी थी हमारी मतलब अच्छी खासी थी। तो लेकिन जीपी में जो था हमारे ग्रुप में सब पॉइंट्स दे रहे हैं, सबकी अलग अलग प्लान्स हैं, सबके अच्छे अच्छे प्लान्स हैं, सब पॉइंट्स दे रहे, तो एकदम हौच पौच हो गया, और बहुत ही मतलब गंदा सा ग्रुप सॉल्यूशन बन गया था। तो सर ने बोला किसी को नॉमिनेट करो। तो हमारे में एक बंदा था, लाइक वो ज़्यादा ही डोमिनेट कर रहा था, मतलब वो मतलब डोमिनेट भी क्या ही बोलूँ, अपने पॉइंट्स दे रहा था कि हाँ भाई ये है। तो मतलब लोगों को अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन बोला कि अब ग्रुप को आगे बढ़ाना है तो चलते हैं इसके साथ। तो लोगों ने उसी को नॉमिनेट कर दिया कि जा भाई तू ही बोल, तूने बहुत बोला है। तो उसने ग्रुप सोल्यूशन दिया, तो उसने सोल्यूशन तो दिया। फिर सर ने बोला एनीवन वांट टू ऐड आफ्टर इट और ओवर इट। ओके। तो सबके हाथ खड़े हो गए कि सर सर सर, तो मैंने भी कर दिया। तो इसके बाद सब उसे बोला ठीक है, तुम्हारा क्या पॉइंट है, तुम्हारा क्या पॉइंट है, तुम्हारा क्या पॉइंट है, सबसे पूछते रहे। फिर मेरे से पूछा क्या है, तो मैंने बोला कि सर उसने जो बोला, लाइक उसने बोला कि कच्चे रास्ते से हम पुलिस वैन ले आएंगे। पहली बात, कच्चे रास्ते से पुलिस वैन आ नहीं सकती, उसने जिस जगह से बोला ओके ओके। तो इसी टाइप का था, मतलब मैं सोच रहा था भाई अगेंस्ट तो नहीं चल जाएगा ग्रुप के, क्योंकि पहली बार मैं देख रहा था कि सबके हाथ खड़े हो गए। तो फिर यही सीन था। अब फिर मैंने सोचा यार भाई इतना कंपटीशन, अब पीजीटी में हालत खराब होती है। तो इसके बाद जब पीजीटी शुरू हुआ, तो पीजीटी में मेरे हिसाब से तो मतलब मैं प्राइम मेजर एरिया में था जहाँ पे मतलब वर्क हो रहा था। तो आई फेल्ट दैट कि हाँ, मैंने सुना भी था कि सब बोलते हैं कि पार्टिसिपेशन जहाँ पार्टिसिपेट हो रहा है वहाँ ग्रुप को तुम कंट्रीब्यूट करो, अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करो, तुम आइडिया दो, लगाओ, मदद करो ग्रुप की, मतलब काफ़ी हेल्पफुल रहो। सर ने भी बताया था, कोनी सर ने, कि कोहेसिव रहो ग्रुप के लिए, तुम एक एसेट होनी चाहिए ग्रुप के लिए, फीलिंग होनी चाहिए कि तुम ग्रुप को आगे बढ़ा रहे हो, ये नहीं होना चाहिए कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, ग्रुप के लिए कर रहा हूँ, तो ये फीलिंग मतलब करो। तो हाँ, मैंने ये चीज़ है कि इसके अलावा मतलब इस चीज़ से मैंने मतलब ये चीज़ नोटिस करी, मतलब पीजीटी जो था इसके साथ साथ जैसे चल रहा था, मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि यार जो रिपीटर्स हैं वो ज़्यादा लाइक इतना डेस्परेट क्यों हो जाते हैं, और मतलब उससे गलतियाँ क्या होती है। तो एक मैंने चीज़ नोटिस करी थी कि बंदे बहुत कॉन्शियस जाते हैं कि यार मैं रिपीटर हूँ, जीटीओ मेरे को देख तो नहीं रहा, मैंने रूल तोड़ दिया, मैंने ये कर दिया। तो इस बार मैंने मतलब सोच लिया था कि जब चल रहा था, पहले टास्क हुआ था, उसके बाद ही मेरे को ये रियलाइज़ हुआ। तो उसके बाद ही मैंने सोच लिया था कि ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होना, मैं जैसा हूँ वैसे करूँगा। तो जैसे मैं ग्रुप यूजुअली बिहेव करता हूँ दोस्तों के साथ, मैं छोड़ दूंगा कि जीटीओ देख भी रहा है मेरे को, मैं बस परफॉर्म करूँगा। तो लाइक ये माइंडसेट मेरे को लगा डेफिनेटली हेल्प करेगा, क्योंकि मतलब काफ़ी लोग जब कॉन्शियस हो जाते हैं तो मतलब अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं कर पाते अच्छे से। तो ये फेल्ट किया था मैंने। जीटी में रूल ब्रेक हुआ था कि नहीं हुआ था? अगर हुआ था तो आपने उसको मतलब दोबारा से मतलब चलते रह गए या उसको दोबारा से किया? एक्चुअली रूल ब्रेक्स हो रहे थे,
तो हम जा तो रहे थे स्टार्टिंग की तरफ, लेकिन सर बोल दे रहे थे ओके ओके कंटिन्यू, क्योंकि सर देख ले रहे थे हाँ भाई इनिशिएटिव ले रहा है बंदा। तो सर बोल दे रहे थे कि हाँ ठीक है जाओ, आगे जाओ। तो ये चीज़ सही लगी थी मेरे को। और सर ने एक और चीज़ मतलब स्टार्टिंग में जैसे रूल्स वूल्स समझाते तो सर ने बोला कितना टाइम चाहिए, तो सब जोश में थे, सब ने बोला सर 30 मिनट्स। बोला ठीक है मैं तुम्हें 15 मिनट और देता हूँ, 45 मिनट ले लो, लेकिन करो तुम अच्छे से। तो मतलब ऐसे पहुंच गए थे, लेकिन मतलब मेरे को फेल्ट हुआ कि मैं हाँ ग्रुप में काम कर रहा हूँ अच्छा खासा, और मतलब ग्रुप में अच्छा खासा हो जा रहा था काम। और एक प्रीवियसली रिकमेंडेड था हमारे ग्रुप में चेस्ट नंबर 12, मतलब उसका मेरे को अच्छा लगा था कि मतलब वो ज़्यादा बोल नहीं रहा था क्योंकि वो मौका दे रहा था सबको बोलने का। और जब ग्रुप कहीं फंस रहा था, जहाँ मतलब एकदम ही खतरनाक वाला फंस जा रहा था, वो आगे तब हेल्प कर रहा था अच्छी खासी। तो आई फेल्ट डैट कि हाँ हीरो एंट्री ले रहा था क्या? हाँ हीरो एंट्री काफ़ी सही था उसका, तो मेरे को ये काफ़ी सही लगा उसका। और इसके अलावा तो फिर जब एच हुआ हमारा, तो एच तो सर ने ऑड इवन में ब्रेक कर दिया था। तो ऑड इवन में तो मेरी साइड थे मतलब ठीक ठाक बंदे थे, और मतलब दूसरे जो ग्रुप में थे उसमें बवाल बंदे आ गए थे सारे। तो जब मेरे ग्रुप का चला, तो हम जैसे आगे गए तो चले गए थे, तो हम लोड पीछे ही भूल गए थे। तो हमारे में एक बंदे ने रिमाइंड किया भाई रोड तो पीछे छूट गया। तो मैंने जीटे को देखा, मैंने स्माइल मारी, मैं चुपचाप पीछे गया, लोड उठा के आगे लिया। मैंने कहा भाई आगे आ गया, ठीक है अब कंटिन्यू करते हैं। तो फिर कंटिन्यू किया। फिर तो मतलब एच तो हमारा सही टाइम से हो गया था, आईडिया भी अच्छे आ गए थे। बस एक चीज़ थी मतलब कि थोड़ा रोप बांधने में मेरे को दिक्कत आ रही थी, मतलब मैं आइडिया देते रहता, तो मैं जब वर्क करने लग रहा था तो रोप बांधने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी मेरे को। तो मतलब वो बाकी बंदे हेल्प कर दे रहे थे मेरे को, क्योंकि काफ़ी सारे रिपीटर से काफ़ी बंदे प्रिपेयर करके आए थे कि रोप कैसे बांधने वगैरह, तो हेल्प हो जा रही थी। तो ये सब तो सही गया था। फिर इसका लेक्चरेट तो फिर अच्छा टॉपिक था, मतलब मेरे पास टॉपिक्स अच्छे आ गए थे। तो मेरे को लास्ट के 2 टॉपिक्स याद है, मतलब क्रैकर बैन था, एक एनडीआरएफ था। तो मैंने सोचा एनडीआरएफ पे बोलता हूँ। तो मैंने जैसे थोड़ा सोचा कि क्या प्रिपेयर करूँ एनडीआरएफ पे, तो मैंने बोला सबसे पहले फुल फॉर्म बोलता हूँ। तो अब मैंने सोचा फुल फॉर्म, अब तो मैंने जब प्रिपरेशन के टाइम में पहले ही बनना था, अब मैंने सोचा फुल फॉर्म क्या है, नेशनल डिजास्टर रिजर्व फोर्स या रेस्क्यू फोर्स। तो मैंने कहा भाई यहाँ तो कंफ्यूज रहेंगे, टॉपिक चेंज। तो फिर मैंने क्रैकर बैन चूज़ किया। तो क्रैकर बैन पे थोड़ा अच्छा बोल दिया, एनिमे वगैरह देखता था, तो मतलब जापान वगैरह में क्रैकर्स की बहुत वो दिखाई है इंपॉर्टेंस वगैरह, तो वहीं से शुरू कर दिया थोड़ा। एनीमे देख, अब लोग कुछ लोग एनीमे देखना शुरू कर देंगे। करो मतलब अच्छा खासा है, अच्छा एंटरटेनमेंट हो जाता है। तो वही था, उससे काफ़ी अच्छा गया था, मेरा इम्पैक्ट भी अच्छा पड़ा था। बाकी लेक्चर की प्रैक्टिस थी तो सही गया था मेरा। इसके बाद फिर जब भी ख़त्म हुआ था, तो इसके बाद जैसे ही लंच करके मैं पहुंचा था, तो उसके मतलब मैं थोड़ा खुश खुश तो था। तो उसके जस्ट बाद मेरे को बोला सर ने कि इंटरव्यू के लिए भाई तेरे को बुला रहे चश्मा में लेना, जा तू। अच्छा, तो इंटरव्यू, फिर उसके बाद आपका जिस दिन आपका जीटीओ टास्क था उसी दिन आपका इंटरव्यू था, तो कैसा रहा इंटरव्यू? इंटरव्यू तो सबसे पहले जैसे ही उन्होंने मेरे को बुलाया, मैंने गुस्सा तो मेरे को रियलाइज़ हुआ है, ये तो वही इंटरव्यूइंग ऑफिसर है जो मतलब 15-15 मिनट का ले रहे थे सब। तो मैंने उस समय ठान ली थी भाई कैसे ना कैसे करके इसको थोड़ा लंबा तो खींचना है। तो मैंने कहा भाई ज़्यादा अच्छे आंसर रखने पड़ेंगे, ऊपर से हाई स्पिरिट थी कि अच्छा गया था जीटीओ। तो मतलब इंटरव्यू इतना कुछ खास नहीं किया था, वैसे ही जनरल सवाल जो पूछते हैं, और एक करंट अफेयर पूछा था उन्होंने मेरे से, मतलब मेरे को आया नहीं हो कि इलेक्शन कहाँ कौन आना है 2023 में। तो मतलब मेरे को ये आया नहीं, तो मैंने कहा कि सर नहीं आता। इसके अलावा एक उन्होंने मतलब मेरे से बस थोड़ा जोशीमठ क्राइसिस के बारे में पूछ लिया था, वो थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करके गया था, उत्तराखंड का था ही मैं। तो मतलब ये सब सही रहा था मेरा, तो मेरे आंसर्स काफ़ी सही थे उस हिसाब से। रेलिवेंट्स भी चल रहा था आंसर्स, मतलब अच्छा खासा, मतलब मेरा बन जा रहा था बेस कि हाँ इस आंसर से मैंने अगले क्वेश्चन का बेस बना लिया अच्छा खासा, तो सही जा रहा था। ठीक है, ओके, इंटरव्यू हो गया, साइक हो गया, सब कुछ जीटी वगैरह हो गया, फिर कॉन्फ्रेंस के दिन कैसा रहा? कॉन्फ्रेंस के दिन सबसे मतलब अलग चीज़ जो हुई थी कि उन्होंने बोल दिया कि हम एक ऑर्डर से करेंगे। मतलब पहले तो मैंने सुना था कि वो बोलते थे कि कॉन्फ्रेंस में कुछ भी ऑर्डर रख सकते हैं, तो वैसे जनरली स्टार्टिंग से ही चलता था। तो उन्होंने एक ऑर्डर रख दिया कि फर्स्ट से 1 से 10 नंबर, देन 21 to 30 चलेगा, देन 11 to 20 चलेगा, एंड देन 31 to 40। तो मैंने बोला भाई क्या हो गया यार, उन्होंने मेरे को अटका दिया दोबारा, ऐसा सोचा जल्दी हो जाएगी कॉन्फ्रेंस। तो फिर यही हुआ था, उन्होंने बोला कि हमारे जीटीओ सर अभी 32 में भी जा रखे हैं, क्योंकि शायद जीटीओ सर्स की कमी थी वहाँ पे, तो इस वजह से। तो उन्होंने रखा। अब मेरे को ये तो पता नहीं मेरा कितना चला था, क्योंकि मेरे से पहले जस्ट टी ब्रेक हो गया था कि बाहर कितना डिस्कशन हुआ, लेकिन अंदर कॉन्फ्रेंस में चला था मेरा थोड़ा। अच्छा। तो उन्होंने कॉन्फ्रेंस में मतलब से पहले तो मेरे से यही सवाल पूछे कि तुम रिपीटर थे, तो व्हाट ऑल द थिंग्स यू फेल्ट, तुमने क्या क्या गलती करी और हाउ डिड यू इम्प्रूव। एंड फिर उन्होंने बोला कि अच्छा तुमने पहली बार में ये गलती करी तो तुमने इम्प्रूव कैसे किया, आई टोल्ड। देन उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, अब तुमने फिर दूसरी बार कहाँ गलती कर दी जब तुमने पहली बार इतनी अच्छी प्रिपरेशन कर दी पहली बार आउट होने के बाद। तो मैंने कहा कि सर यहाँ गलती हो गई थी। तो उन्होंने बोला अच्छा, बोला हाँ ठीक है, अब इस बार क्या प्रिपेयर करके आओ। तो मैंने यही बताया कि हाँ सर इस बार मतलब मैंने सोचा कि मैं जो टास्क करूँगा बस उस पर फोकस करूँगा 100%,
क्योंकि ऑल द टास्क अल्टीमेटली लीड्स टू दैट रिकमेंडेशन ओनली। सो अगर तुम हर एक टास्क अपना 100% दे रहे हो तो तुम्हें रिकमेंडेशन जरूर मिलेगी। तो उन्होंने मेरे से ही पूछा इस बार भी नहीं होता तो तुम्हें क्या लगता है कहाँ गलती हुई? तो मैंने सर को बोला कि सर अब जहाँ से बात चली है कि मतलब मैंने बोला कि इस बार मैंने 100% दिया है, तो अभी तक तो मेरे को फिलहाल लगता नहीं मैंने कहीं गलती करी है। तो अब क्या अब कहीं दिक्कत आएगी अगर मैं नहीं होता इस बार तो मेरे को घर जाके सोचना पड़ेगा मैंने गलती कहाँ करी है इस बार। तो उसने बोला अच्छा। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा अच्छा तुम्हारे ग्रुप के बारे में क्या ख्याल थे? तो मैंने बोला सर ग्रुप कॉम्पिटिटिव था हमारा काफ़ी। तो बोला कि टेल मी 3 डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉम्पिटिटिव ग्रुप। तो मैंने बोला कि हाँ सर, एक मेरे को लगा कि सभी लोग अच्छे थे बंदे, तो सभी लोग अपने अच्छे अच्छे आइडियाज़ दे रहे थे। अब लेकिन सबके आइडियाज़ अच्छे थे, अब कौन सा आइडिया चुने, एक कंक्लूजन में आने में थोड़ा टाइम लग रहा था, थोड़ा मतलब डिलेड डिसीजन हो रहे थे। और दूसरी चीज़ मैंने बोली कि हाँ सर ग्रुप में थोड़ी मतलब दिक्कत ये थी कि हर एक बंदा अच्छा था, मेरे को लगा अच्छा बंदा है। मेरे साथ 2 प्रीवियसली रिकमेंडेड बंदे थे, तो मेरे को लगा हर एक बंदा डिजर्विंग है, काफ़ी अच्छे अच्छे बंदे थे। तो हर एक बंदा तो हो नहीं सकता रिकमेंड ग्रुप में, तो काफ़ी को दिक्कत होगी ज़रूर जो इस बार नहीं हो पाए, ओवर शेडो हो गए। अगली बार मेरे को यकीन है कि हो जाएंगे काफ़ी। तो बोला अच्छा। फिर इसके बाद उन्होंने बोला ओके टेल मी 5 नेम्स ऑफ फ्लावर्स। तो मैंने बताया वो। उसके बाद बोला जल्दी जल्दी बता दिए थे। उसके बाद बोला टेल मी 5 नेम्स ऑफ aquatic एनिमल्स, वो भी बता दिया मैंने। उसके बाद बोला टेल मी 5 नेम्स स्टार्टिंग विद लेटर जी, मतलब जेड, तो वो भी बता दिया मैंने कि हाँ ठीक है जल्दी जल्दी कुछ भी बता दिए, जैन जैक और वगैरह वगैरह। तो उन्होंने बोला ठीक है नाउ टेल मी 5 यूजेस ऑफ योर स्पेक्स अदर देन वेयरिंग। तो सबसे पहले तो मैंने बोला कि सर लाइक मैं कॉलर पे लगा दूंगा पोज के लिए, प्रश्न मारने के लिए। फोटो पोज के लिए। तो उन्होंने बोला पहनना है ही नहीं, हाँ। अब बताओ। तो मैंने कहा सर पेपर में रख दूंगा। बोला किस लिए पेपर वेट? तो इसका उन्होंने बोला अच्छा ठीक है और बताओ। तो अब वहाँ सब 12 बंदे मेरी तरफ ही देख रहे हैं, अब मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा ऑन द स्पॉट। तो मैं थोड़ी देर सोच रहा, मैंने कहा कि सर आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग। तो बोला ठीक है टेक योर टाइम, आई एम गिविंग यू टाइम। उसके बाद भी थोड़ा 1-2 सेकंड में बता नहीं पाया, तो उसने मतलब सर ने खुद ही बोल दिया कि ओके लेंस निकाल सकते हो तुम, ये कर सकते हो। मैंने कहा, फिर मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया आइडिया। मैंने कहा हाँ सर मैं माइक पर्सन हूँ, कॉनकेव लेंस है, तो सर इसको मैं वो बना लूँगा, लाइक फिजिक्स एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इससे। बोला ठीक है क्या एक्सपेरिमेंट? मैंने कहा सर फोकल लेंथ फाइंड करने का। फिर उसके बाद बोला एक और दो कोई आइडिया। तो मैंने कहा सर मैग्नीफाइंग ग्लास बना दूंगा। बोला एक और चाहिए। तो मैंने थोड़ा सोचा, मैंने कहा सर इतना ही आता है। बोला ओके नो प्रॉब्लम। फिर वही थोड़ा पूछ क्या सजेशन दे सकते हो? तो मैंने कहा कि सर आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ डाल सकते हो अच्छी खासी, तो अच्छा खासा इंट्रैक्शन हो जाएगा, कि जैसे एंटी रूम में शॉर्ट टर्म इंट्रैक्शन हो रहा है तो उसमें थोड़ा अच्छा खासा इंट्रैक्शन हो जाएगा हर एक बंदे से। तो डैट्स ऑल। मैंने कहा ठीक है यू मे गो नो। तो उसके बाद मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, जब थोड़ी कॉन्फ्रेंस लंबी चलती है कि हाँ भाई कंसिडर कर रहे हैं तुम्हें, कुछ ना कुछ हो सकता है। हाँ हो सकता है, तुम हो भी सकते हो नहीं भी हो हाँ। सकते। तो जिस हिसाब से मतलब मैं बच्चों को बता रहा था, बच्चे बोले तो हो जाएगा तेरा यार। हाँ। तो कुछ था। फिर लास्ट में जब रिजल्ट आया तो हम 11 बंदे रिकमेंड हुए थे, और मेरे ग्रुप से 2 बंदे हुए थे हम, एक मैं था और एक चेस्ट नंबर 12 था। जो प्रीवियसली रिकमेंडेड। हाँ जो प्रीवियसली रिकमेंडेड था, जो हीरो था। अच्छा हीरो अच्छा। ऑफ द पीसीटी। तो वो सुन रहा होगा भाई, बहुत खुश होगा अभी तो। हाँ वो खुश था काफ़ी। और बाकी तो मतलब अच्छा ही फील था। उसके बाद तो काफ़ी मतलब मेरे एक मोमेंट था यार वो, हाँ। उस टाइम की हाँ भाई हो गया फाइनली यार, लास्ट टाइम था और बहुत मेहनत करी, हो गया आखिरकार पहुंच गए। तो लास्टली जाते जाते कुछ एनडीए एस्पिरेंट्स जो जिनका भी एग्जाम है, अभी 1 महीने में एग्जाम है, या जिनके अभी एसएसबीज है, उनके लिए कुछ गोल्डन वर्ड्स व्हाट यू फील कि यू हैव लर्न फ्रॉम ऑल योर एक्सपीरियंसेस, और इनको एटलीस्ट पता होना चाहिए वहाँ जाने से पहले। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि डोंट लूज होप, कि काफ़ी सारे फेलियर्स देखते हैं काफ़ी बंदे। मैंने अपने साथ मतलब सीडीएस वाले काफ़ी सारे भैया देखे जो रिकमेंड हुए अपने 13 टाइम 14 टाइम। तो लाइक मैं सोचता था यार भैया कितना पेशेंस है, कितना दिया आपने। तो लाइक सबसे पहले तो डोंट लूज होप। और अगर आप फ्रेशर हो तो मेरे हिसाब से आपके पास सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने आप को प्रेजेंट करने की। तो कहीं ना कहीं से एक बार गाइडेंस ले लेनी चाहिए कि कैसे कैसे करना है एसएसबी में। और अपार्ट फ्रॉम इट रिपीटर हो तो डोंट शो डेस्पिरेशन, और कॉन्शियस मत हो ज़्यादा वहाँ जाके, जो है अपने आप को असली में दिखाओ। क्योंकि मैं मानता हूँ कि यार हर एक बंदा ग्रुप में बहुत ही प्यारा बंदा है, लाइक अच्छा खासा कर सकता है। अगर तुम कॉन्शियस हो गए तो काफ़ी तुम अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं कर पाओगे अच्छे से। और लास्टली यही बोलूँगा कि एक टास्क पे फोकस करो जो कर रहे हो 100%, और डेफिनेटली यू विल सी द रिजल्ट। लास्ट में तुम्हारा रिकमेंडेशन 100% होगा। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। तो आई थिंक इट वाज अ हेल लॉट ऑफ एक्सपीरियंस फॉर यू। बहुत मजा किया। जैसे कि आपका मतलब ये तो समझ लो 40 मिनट्स में से बहुत कम चीज़ें सुनी है, वहाँ पे तो आपने 5 दिन मजे करे होंगे। एंड सब कुछ हो गया, सब कुछ थिंग्स वर ऑन योर साइड, रिकमेंड भी हो गए, और फिर आई होप मेडिकल मेडिकल सब कुछ फिट वगैरह होगा। हाँ फिट एकदम। अच्छा चलो, नाउ आई एम वेटिंग फॉर योर मेरिट्स एंड आई विश यू लक फॉर योर मेरिट लिस्ट। वैसे हो जाएगा, यू नो आई जस्ट हैव अ गट फीलिंग कि यू आर गोइंग टू द एकेडमी। एंड बाकी फिर मिलते हैं। एंड इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके,
बहुत कुछ सीखने को भी मिला। आई होप व्यूअर्स को भी, बहुत सारे व्यूअर्स को भी सीखने को बहुत। दैट्स इट फ्रॉम मी, दैट्स इट फ्रॉम अस। एंड अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने साथ जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं उन सबके साथ ये वीडियो शेयर करो जो एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या सीडीएस के लिए या एफकैट बीट एनी एग्जाम डिफेंस से रिलेटेड, उनसे प्रिपेयर करो, उन सबके साथ ये वीडियो शेयर करो। और अगर कोई आपकी क्वेरी हो तो कमेंट्स में कमेंट पोस्ट करो, और जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।